Rahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sufai class 8, subject history, lesson number 5, social and religious reforms. Along with the spirit of English education, there were a spirit of new thoughts, new idea, new philosophy. Indian also introduced to Western thoughts and a culture. Due to it, there were changes in social, religious, economy, and cultural aspects of Indian society. The modern educated Indian become aware that the backwardness of India was due to superstitions, casteism, old custom, class system, and a lack of critical outlook. It was the necessary to eradicate the flaws and the undesirable tendency for the progress of the country and to create a new society based on the principle of humanity, equality, and fraternity. The educated thinkers started social awareness throughout the writings to solve the various problems in the society. The intellectual awakening in the contemporary society is called Indian Renaissance. जो हमारे यहाँ पर नई एजुकेशन आई, इंग्लिश एजुकेशन, उससे लोगों को नए थॉट्स, नए आइडिया, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें इनको पता हुई। और जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें जो चेंजेस आए हमारे यहाँ पर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमी एंड कल्चरल। और ये मॉडर्न एजुकेशन से इंडिया बिकम अवेयर, और जो मॉडर्न एजुकेशन था उससे अवेयर हुए इंडियन, और इन्होंने हमारे कास्टिज़म, कस्टम, क्लास सिस्टम, क्रिटिकल आउटलुक जो थे इनमें भी चेंजेस आए। और कुछ ये जो न्यू सोसाइटी क्रिएट हुई इंडिया के अंदर, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल थे, जो 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल: ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, द बेस ऑफ द न्यू इंडियन सोसाइटी. This called the contemporary society is called Indian Renaissance. Next, era of religious. The second one is the Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj in 1828, Raja Ram Mohan Rai established the Brahmo Samaj in Bengal. बंगाल में जो फर्स्ट ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई वो राजा राम मोहन राय ने करवाई, और वो बंगाल में, जिसका नाम दिया गया ब्रह्मो समाज. ही हैड द स्टडी मेनी लैंग्वेजेस, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज की स्टडी की. एंड द रिलीजियन थॉट्स, इट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द अद्विता फिलोसफी वॉज द डेवलप. मोनोथिज्म, caste and the class equality, protest against the rituals and the following the way of prayers were the principle of Brahmo Samaj. He opposed sati pratha, sati practice, and child marriage, prudha system, and the promoted widow remarriage and female education. He founded a Hindu college in Calcutta. He created a public awareness and thought the newspaper Samvad. अवेयरनेस थॉट द न्यूज़पेपर है ना, संवाद कौमुदी. नेक्स्ट जो हुआ है वो है जो दूसरा समाज इस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज दाड़ोबा पांडुरंग ठक्कर खेड़कर established the Paramhansa Sabha in Mumbai 1848. Later a Paramhansa Sabha was the dissolved and the some of its members founded the Prarthana Samaj. Dadoba's brother Dr. Atmaram Pandurang was the first president of the प्रार्थना समाज. जो प्रार्थना समाज इन्होंने दाड़ोबा ने बनाई थी, इस्टेब्लिश की, तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग. द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्रीज ड्यू टू द इनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. Justice Ranade, Dr. R.G. Bhandarkar, and carried forward the work of Prarthana Samaj. The opposition to ideal worship, monotheism, opposition to rituals were the principle of Prarthana Samaj. They stress on devotion and prayers. From the reforming the society, Prarthana Samaj started the orphanage, women's education institute, night schools for the workers, and the society for Dalit. And Maharishi Vitthal Ramaji Shinde, a member of Prarthana Samaj, established the depressed class mission through
द मिशन एंड द अटेम्प्ट वाज द मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। जो ये जैसे राणा डे थे एंड डॉक्टर R.G. भंडारकर carried forward the work of Pratna Samaj, an opposition ideal worship, monotheism, opposition rituals, the principle of Pratna Samaj, and the stress of the devotion, prayer for the रिफॉर्मिंग सोसाइटी, और उन्होंने सोसाइटी को बढ़ाने के लिए बहुत प्रेयर की। और उस प्रार्थना सभा जब स्टार्टेड हुई तो इन्होंने औरतों की शिक्षा पे काम किया है, नाइट स्कूल चलाए, और जो वर्कर थे सोसाइटी में जो दलित कास्ट के थे उनका, जो महर्षि शिंदे थे, रामजी शिंदे, वो मेंबर थे प्रार्थना समाज के। उन्होंने एक डिप्रेस क्लास मिशन बनाया जिसमें जो दलित समाज है उनके लिए इसमें प्रॉब्लम्स को, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उनके लिए ये दलित समाज जो डिप्रेस क्लास मिशन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज। कौन ने इस्टेब्लिश करवाया सत्यशोधक समाज को? महात्मा ज्योतिराव फुले। स्टार्टेड 1873। सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी। दे प्रोटेस्ट अगेन द अनटचेबिलिटी। उन्होंने किसका वो किया, प्रोटेस्ट किया? इक्वेलिटी, बेसिस ऑफ इक्वेलिटी, एक समानता। जो प्रिंसिपल इसके सत्यशोधक समाज के जो प्रिंसिपल थे यही थे, इक्वेलिटी बेस ऑन एंड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना थी उसके अगेंस्ट में। दे एडवोकेट एजुकेशन एमंग द डिप्रेस क्लास एंड वुमेन। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी मीडियम ऑफ बुक्स लाइक Mahatma Phule reformed the society through the medium of books like the Brahmanche Kasab and गुलामगिरी। जो हमारा ये लेसन है इसका फर्स्ट पैरा इज द कंप्लीट। द फर्स्ट इज द ब्रह्मो समाज, सेकेंड इज द प्रार्थना समाज। द ब्रह्मो समाज इज द एस्टेब्लिश इज राजा राम मोहन राय एंड द प्रार्थना समाज इज दाड़ोबा पांडुरंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।